In today's class, we are going to learn about stoichiometric calculations. Okay. I will wait for 3-4 more minutes and then I will start the class because I don't have any other student here joining. Let me see what happened and then we will start the class in 4 minutes more. Okay. Fine enough. Okay, sir. Yes.
So let's start. I think those people are not going to join. Write the topic. Is stoichiometry. I get confused with the spelling. Stoichiometry is a stoichiometry, like stoic. Stoichiometric calculations. So in stoichiometric calculation, we basically deal with the amount of reactant and the amount of product. So what does the amount of reactant mean? What is the amount of reactant required to form a particular amount of product? So anyhow, we are speaking about what? Amount of reactant and amount of, tell me, above, amount of reactant and amount of what? Pop, are you there? I can't hear you. Is your mic off? Amount of reactant and amount of the product And amount of the product. involved in the cheese. So please write. Calculation of amount of reactant and product. Calculation of amount of reactant and product. Walaikum Salam. Akib, why are you late? Sir, I was praying namaz. In a chemical reaction. What's your thing? I think. Maghrib, sir. Okay. Stoichiometric calculation. Then wrote this down. And there are a few things जिसको हम use करेंगे in order to understand the stoichiometric calculations, है ना? कुछ basic चीजें हैं बिल्कुल जो आपको याद रखनी चाहिए. First thing is that number one point is stoichiometric calculations can be done. SC मतलब stoichiometric calculations can be done only for a balanced chemical reaction. Another I will let balanced chemical equation. Now, all of you know what is a balanced chemical equation? Class 10th, first chapter, chemical reactions and chemical equations, right? All of you must know about it. First is that. Now, next point is few definitions जिसको हम लोग याद रखेंगे. If I have, let us suppose, a general reaction, आप लोगों ने general reaction अभी तक देखा नहीं है, for a chemical general equation for a chemical reaction. तो जो general reaction होता है उसको इस तरह से दिखाते हैं. अच्छा, उससे पहले हम आपको एक चीज पूछते हैं. So for example, you have, don't write this thing, N2 plus H2 gives you NH3. Is this balanced or not balanced? Don't write this, tell me. Balanced or not balanced? Sir. Not balanced. Not balanced. Not balanced. ठीक है. Sir, कैसे 2H2 and 2 कि NH3. reactant side पे N2 पर N2 है और यहाँ पे सिर्फ N है. तो क्या करें बताइए. यहाँ पे 2 कर देंगे और H2 के लिए क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट? Yes. 3H2 होगा ना? 3H2. Yes, 3H2. Okay, make sense? Yes, sir. ठीक है. ये आपके पास हो गया chemical species. This is also chemical species. This is also a chemical species.
What is this number 2 called? What is this number 3 called? And what number is in front of N2? Mole. What One number? mole. 1 is there, na? Yeah. 1 is there. So ये 1, 3, 2 इसको क्या बोलते हैं? Sir, we can call them mole, molecule, gram, liter, anything, right? नहीं. In terms of मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से बताइए क्या बोलते हैं इनको. जैसे if you remember mathematics, अगर आपको याद हो, polynomials and quadratic equations were there in the class 10th, right? So we used to write ax square plus bx plus c equal to 0 quadratic equation. So ये a और b क्या है? Number. अरे नंबर है. क्या नाम, जनरल नाम क्या होता है इनका? c से स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं? Cubic number. क्या नहीं, को नहीं याद आ रहा. Coefficient. कोएफिशिएंट्स, राइट? अफाफ याद आया? जी बताएं, याद आया अफाफ? सर हाँ याद आया. So similarly these are also what? Coefficients, है ना? ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. All of these are what? Coefficients. ठीक है. अच्छा ये 2 coefficient है क्या? Tell me. This 2, the red arrow जिसमें बनाया हमने, ये coefficient है क्या? ये coefficient No, है? sir. नहीं. नहीं ठीक है. सर. These are not coefficients. Very good. चलिए. Now looking at this, we'll call that these are what? इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, जैसे कि मैथ्स में बोला जाता है कोएफिशिएंट, राइट? यहाँ पे बिकॉज वी आर डूइंग स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, वी आल्सो कॉल देम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. But we will be denoting them, or we will be taking their name and we will be only saying coefficients. Will that work? Apart and after, yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes. Now this is for a specific reaction. लेकिन अगर general reaction लिखते हैं, so we write a general reaction like this. AA, that means the small a is the coefficient and this big A is the chemical species, plus BB gives CC and DD. ठीक है. So this A, this B, this C and this D. All these small letter A, B, C, Ds, these are what? These are coefficients of A, coefficient of B, coefficient of C and coefficient of D. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Fine. Yes, clear. Now please see, whenever we write the coefficient, this has a particular meaning. क्या meaning होता है इनका? Now this A, B, C, D can either be, we can have a molecular definition. कैसा definition? Molecular. Molecular. Or we can have a definition with respect to moles. Or we can have with respect to number of particles also. Number, this is for particles. This is for number of, okay. Hash sign is clear. Number of periods, the number of particles. We can also have this for volume if gas is present. Volume only if it is gas at STP. Okay, volume of gas भी हो सकता है. But I can write A moles of A reacts with B moles of B, giving you C moles of C and D moles of D molecules of D. अगर A के 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे B के 4 मॉलिक्यूल्स, B के कुछ मॉलिक्यूल से C और D मिलेगा. सिमिलरली मोल्स में भी बात करेंगे तो A, B, C, D, these will be numbers. पार्टिकल्स में भी A, B, C, D particles. वॉल्यूम में भी A liter will react with B liters of B, C liters of C and D liters of D. ठीक है. But we cannot say that this is mass. Mass में इसको आप A, B, C, D नहीं लिख सकते. A ग्राम reacts with B ग्राम reacts with C ग्राम नहीं, और D ग्राम नहीं लिख सकते. Why? Because molar mass of different substances are different. If I take one molecule of A, तो B का भी one molecule लेंगे तो same चीज, एक molecule होगा. But if we talk in terms of mass, 1 gram of A will have different number of molecules than 1 gram of B, because their molar masses are different. Right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now इससे आप लोग एक चीज याद रखिएगा. Now next thing is that ये आप समझ लीजिए. अगली चीज आपको याद रखनी है, that is balanced chemical reaction, and then you have to remember a very important one, that is known as moles to
coefficient ratio. Moles to coefficient ratio. What does it mean? It means that moles to coefficient ratio क्या होता है? If I have a reaction AA plus BB giving you CC plus DB. ठीक है? So if I take NA moles, number of moles A का कितना लिया हमने? Number of moles we have taken for A is NA. Number of moles I have taken for B is NB. And I get number of moles of C as NC and number of moles of D as ND. Then in that case, moles to coefficient ratio क्या हो जाएगा? What is the number of moles for A? N divided by what is the coefficient of A? Small. This will be equal to the number of moles of B divided by small b, the coefficient of B. This will be equal to number of moles of C divided by C. This will be equal to the number of moles of D divided by stoichiometric coefficient, that is, sorry, D, it will be capital D, number of moles of D divided by its stoichiometric coefficient. अब यहाँ पे आपको या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दे देंगे, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दे देंगे, या तो सी दे देंगे, या तो डी दे देंगे, और उसके बाद कोई दूसरा पूछा रहेगा आपसे. ठीक है? सो प्लीज नोट दिस डाउन. मोल्स टू कोएफिशिएंट रेशियो, मोल्स टू कोएफिशिएंट रेशियो, बस यहाँ पे आपका इससे कम से कम आपके मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन बाय दिस वन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. ठीक है? ऑल ऑफ इट डन? यस नो प्लीज टेल मी. ठीक है? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया रहा है, बट जनरली आप यस अपाफ कोई दिक्कत जनरली आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं दिया रहेगा है, आपको क्या दे देंगे? मास देंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इफ मास इज गिवन, पीसी the given mass of A divided by molar mass of A multiplied by A will be equal to given mass of B divided by molar mass of B multiplied by will be equal to given mass of C divided by molar mass of C into the stoichiometric coefficient of C will be equal to given mass of D divided by molar mass of the D species multiplied by the coefficient B. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. ठीक है. तीसरी रिलेशनशिप, that is for volume. That will be for volume. Volume के लिए क्या हो जाएगा? Volume के लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप at STP. Volume of A divided by A will be equal to volume of B divided by B will be equal to volume of C divided by C will be equal to volume of D divided by D में कैपिटल डी आएगा यहाँ, डिवाइड बाई डी. ठीक है? अब लास्ट बचा क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बात करें. सो आई विल राइट दिस इज नोन एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ, ये हैश के लिए नंबर होता है ना, हैश का मतलब नंबर होता है. ठीक है? डिवाइड बाई ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी डिवाइड बाई बी will be equal to number of particles of C divided by C will be equal to number of particles of D divided by D. ठीक है? We have done all the cases. याद रहेगा सबको? अपाफ एंड आकिब याद रहेगा? Yes, Hash means hash का मतलब क्या होता है? Number of particles of. यहाँ पे हम लिख देते हैं. Hash का तो in general meaning होता है पूरे लाइफ में, है ना? ऐसा नहीं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर जगह मतलब था नंबर. In this case, it is number of particles of जो भी लिखा है A, B, C, D. ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताएं, हाँ या ना? no, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं. ठीक. अब देखिए यहाँ पे केस 1 क्या लिखिएगा? केस 1. when only wait a second. When the amount of only one reactant is given. When the amount of only one reactant is given, what you have to do? Apply moles to coefficient ratio
and get the answer. ठीक है? Yes, sir. So now let us do few questions. Just give me a second. So let me see your NCERT. I don't remember. चलिए ठीक है. Read a question. I remember it now. $16 grams of CH4. 16 gram of CH4 is combusted. Is combusted. Calculate the amount of CO2 formed. ठीक है. अब इस तरह का सवाल देख के आपको तो बहुत गुस्सा आ जाता होगा. क्या सर एक नंबर दिया, कैलकुलेशन कहां से होगी? राइट अफाफ एंड आकिब? Yes, Sir, sir. we can do बहुत CH4 plus confusion O2. बहुत कंफ्यूजन होता है. अब आप बोले बहुत कंफ्यूजन. देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हर एक लफ्ज का, सी दिस इज व्हाट आई सेड इन द इनिशियल डेज की ट्रांसलेशंस. क्या करेंगे? ट्रांसलेशंस. हियर वी हैव 16 ग्राम ऑफ CH4, दैट इज फाइन. सो यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको लिख लेते हैं. दैट मास ऑफ CH4 is equal to 16 grams. Correct? आकिब एंड अफाफ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now it is saying, हाँ बोलिए आकिब. Nothing, sir. अच्छा. CH4 is combusted. What is the meaning of CH4 is combusted? CH4 plus O2. अच्छा, अफाफ को पता है ये चीज? अफाफ? Yes, sir. हाँ पता है. पता है. ठीक है ना. Combustion का मतलब reaction with O2. Now what will be the product? What will be the product? CO2 plus H2O. अफाफ को पता है या नहीं पता? पता है सर. पता है तो बोल क्यों नहीं रही हैं आप? बोलना है. अच्छा ठीक. ठीक है. CO2 plus H2. ठीक है. अब बताइए आपको मास दिया हुआ है ना. यह हैव बीन. अच्छा यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग चूज करेंगे. आपको दिया हुआ CH4 और आपको निकालना क्या है? CO2. करेक्ट CO2. ना? और आपको क्या Yes. दिया हुआ है? मास दिया हुआ है. तो मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो के हिसाब से व्हाट वुड बी माय फॉर्मूला? इसको हम नाउ वी आर ओनली गोइंग टू लुक एट CH4. अच्छा बैलेंस है या नहीं बैलेंस है? इज दिस बैलेंस्ड? यस और No, sir. No, sir. It's not balanced. बैलेंस नहीं है. बताइए क्या बैलेंस करेंगे, कैसे? Sir, we have to put 2 coefficient for O2 Oh, yeah. and then 2 H2O. देखिए लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता आकिब. आकिब देखिए सुनिए. आप पहले बोलिएगा H2O के लिए, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 4 है. तो पहले यहाँ पे 2 लगाइएगा ना. उसके बाद ऑक्सीजन जब 4 हो जाएंगे तब आप यहाँ पे 2 समझ में आ रही Okay. बात? ठीक है. मे Sorry, बी sir. आपको नहीं आपको शायद याद है ये रिएक्शन, इस वजह से आपने बोल दिया इधर से राइट हैंड साइड से. राइट. Yes, sir. हाँ ठीक है. आई अंडरस्टैंड दैट. बट अगेन याद रखिएगा कि जिस तरह से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं वैसे ही बताया जाता है. ठीक है. 2H2 फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट. अब यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद CH4 एंड CO2. तो मोल टू कोएफिशिएंट रेशियो लिख सकते हैं इसका ना. बट इन टर्म्स ऑफ मास क्या लिखेंगे? मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय, बोलिए डिवाइड बाय, लिखा है तो था, डिवाइड बाय Ma into A. Yeah. MA into. मोलर मास ऑफ CH4. अब तो CH4 हो गया ना, A नहीं बचा ना. Yes, sir. CH4 हो गया. इनटू CH4. हाँ इनटू क्या होगा? A क्या है? व्हाट वाज A देयर? वहां पे A क्या था?
कोएफिशिएंट। तो CH4 का कोएफिशिएंट क्या है? What is the coefficient of 0 means CH4? 1 1 1. 1 will be equal to, अब हमको किससे किससे लेना देना है? CO2 से। So हम CO2 को पकड़ेंगे, will be given mass of CO2 divided by, given mass तो नहीं दिया हुआ, लेकिन mass of CO2 divided by molar mass of CO2 multiplied by coefficient of CO2 कितना है? 1. अफाफ एंड आकिब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन तो बताइए। No, sir. तो है ना, ठीक है। अब यहाँ पे there are few things that you don't know, अब लेकिन शायद आपको पता भी हो। What is the molar mass of CH4? अफाफ बताएंगे। 16. अफाफ, हाँ ठीक है, चलिए अफाफ CO2 का बताएंगे, ठीक है, आके आप बताएंगे। मोलर मास ऑफ CH4 is 60। मोलर मास ऑफ CO2 अफाफ, Can I? नहीं आप चार्ट में बताइए, चार्ट में आप दे दीजिए आंसर। हाँ अफाफ बोलेंगे, आके आपसे आप चार्ट में दीजिएगा आंसर, है ना, अफाफ कुछ नहीं बोलेंगे। Okay, sir. अफाफ क्या हुआ? यस करेक्ट, आके वेरी आके आप प्लग इन कर देंगे वैल्यूज को और फिर निकाल लेंगे मास ऑफ CO2 कितना निकलेगा। Sir, मुझे already पता है. आप ठीक है, तो कर लीजिए कैलकुलेट। Okay. जी अफाफ टेल मी। 32. नहीं, गलत बात अफाफ, ऐसे नहीं ना, ऐसे कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही हैं आप, नहीं कर रही ना पढ़ाई लिखाई। सर एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग टाइम। एक्चुअली मैं ट्रैवल पर ट्रैवलिंग हूँ। कर, कहाँ पे ट्रैवल, उमरा करने गए? उमरा तो बंद है अब। नहीं मतलब सऊदी से इंडिया को आई, तो उसमें थोड़ा नेट का इशू सब हो रहा है। नेट का प्रॉपर इशू अभी हो रहा है? हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं? हम USA से पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं हम इंडिया कहाँ से ही से पढ़ा है। फिर? I'm so remote town, in so remote village, यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है। So you're using mobile data, Afaf? यस सर। I'm also using mobile data। ठीक है, बताइए CO2 का क्या होगा, कार्बन का वेट कितना होता है? मास ऑफ कार्बन अफाफ जल्दी बताएं, मास ऑफ कार्बन अफाफ। 1 नहीं पता? 1 कार्बन का मास, कार्बन का एटॉमिक मास आपको नहीं पता, हाँ या ना बोलेगा? पता है। 1 होता है कार्बन का एटॉमिक मास। कार्बन का, हाँ। नहीं 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 नहीं, एक मतलब 12 होता है, सॉरी, कार C12। कहाँ ध्यान है आपका? और ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन जल्दी 60। तो बताइए आप कितना आ जाएगा मोलर मास ऑफ CO2? और कितना 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 आएगा? कैलकुलेट कर, अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं। 44। ठीक है, वैल्यू प्लग इन करके यू कैन कैलकुलेट आंसर। W of CH4, मास ऑफ CH4, मास ऑफ CO2 क्या निकल जाएगा? मोलर मास ऑफ CO2, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। ओके। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आके आप आंसर बता दीजिए चैट में कितना है। नहीं नहीं, आके मास बताना है कितना है। Okay, sir. बिकॉज क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ, फिर अमाउंट पूछा हुआ ना, तो ग्राम के ही बेसिस में आपको आंसर करना होगा। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड। नहीं, रॉन्ग।
गलत है, आके फिर से बताइए कितना होगा। सर वही तो होना चाहिए। Can you send me the answer on my WhatsApp? कैसे किया ओके आपने? सर। और आपका फाफ आया, ये नहीं आया अभी तक फाफ? गॉट दिस? फोर्टी फोर। 0.5 कैसे आ रहा है आपका, हम वो पूछ रहे थे। आपने आके लिखा ना 0.5 मोल्स। सर वो मैं सर मोल्स कैलकुलेट किया था। नहीं तो 0.5 नहीं आएगा ना। मोल्स किसका? मोल्स 0.5 किसका? 0.5 मोल्स आ रहा है आपका? CH4 का सर। CH4 का 1 आएगा ना। मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। 1। अरे गिवन मास बाय मोलर मास देखिए 1 आएगा। आखिर 1 आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए। अफाफ हो जाएगा ऐसा सवाल? हाँ या ना बताएं। हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आएंगी। नंबर 1 प्रॉब्लम आएगा आपको, नंबर 1 प्रॉब्लम आएगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको नहीं पता होगी। ठीक है, क्या नहीं पता होगी आपको? बैलेंस बैलेंस केमिकल। केमिकल रिएक्शन। तो वो आपकी गलती जो है ना, वो स्टोइचियोमेट्री की गलती नहीं है ना? वो किसकी गलती है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन की गलती है कि आपको नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जी you सर। are not able you are not able to do the questions of stoichiometry, but the problem is not in stoichiometry, the problem is in balance chemical reaction. ठीक है, next, you won't remember molar masses, है ना? You won't remember molar masses. अब ये प्रॉब्लम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की नहीं है, किसकी है? आपको मोलर मासेस नहीं आते। ठीक है, तीस चीज बहुत ही, अगर कुछ बच्चे होते जिनको नहीं होता है, इनको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। लेकिन फिर भी होते हैं कुछ बच्चे, आपको तो आता है, बट देयर आर सम स्टूडेंट हु कैन नॉट सॉल्व लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। फ्रैक्शंस में घबरा जाते हैं, डेसिमल आता है तो घबरा जाते हैं। तो उनके बच्चों की दिक्कत फिर मैथ्स में होती है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दिक्कत होती है नहीं, किसमें दिक्कत होती है? मैथ्स में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए राइट दिस क्वेश्चन ना। ये हो गया ना 44 ग्राम, आराम से आ गया। जी सर, यस फोर्टी सर। फोर वाला आज। ठीक है, समझ में आया आपको आफाफ? जी सर, आया समझ में। ठीक है, चलिए। हार्मनी मोल्स ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे आपका सबसे पहला काम होगा कि कुछ अगर दिया है तो उसको लिख लें, और उसके तुरंत बाद आप क्या लिख लें? केमिकल रिएक्शन लिख लें, व्हाट केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, एंड देन यू हैव टू बैलेंस इट। सर आंसर चैट पे बोलना है। हाँ, आंसर चार्ट पे देना, आंसर चार्ट ओके पे दीजिए। सर। केमिकल रिएक्शन लिखा आपने ना आफाफ? यस सर, लिखा है। बैलेंस किया है ना? हाँ, बैलेंस किया है। ठीक है, आप आंसर भेजिए चार्ट पे, फिर उसके बाद हमको आप व्हाट्सएप भी कीजिए फोटो, जो भी आपने काम किया उसको। ठीक है,
सर मैं व्हाट्सएप पे नहीं कर सकती। कोई नहीं क्या घर पे? नहीं, आई मीन लाइक वो फोन नहीं है, दो भी फोन बाहर। तो फोन बाहर है। आप अच्छा, आप जिस फोन से, अच्छा आप जिस जो फोन आपके पास है उससे आप रिकॉर्डिंग सुन, मतलब लेक्चर देख रही हैं। सॉरी सर, आप कैन यू से अगेन बस। हाँ, no, I'm saying that you are also watching the lecture on the phone, इस वजह से you are attending the class on the phone or a laptop or a tab। लैपटॉप। अच्छा लैपटॉप, ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम, आप भेजिए, हम चैट में भेजिए आंसर, आई विल अंडरस्टैंड इट। आकिब, आपसे हुआ नहीं हुआ? Doing, sir. डूइंग इतना टाइम लगेगा? Sir, I was not doing. I thought that you will do. That's why I was quiet. हम नहीं कुछ करेंगे, हम कर लिए, अब आपको करना है। Yes, आगे sir, सवाल I'm doing. जी। कितना आंसर आ रहा है आपका? Let me think about it. How many moles of nitrogen are needed to produce 8.2 moles of ammonia? करेक्ट, आसान था आफाफ? जी सर। It was easy, right? हाँ इजी तो था, मतलब लाइक उतना इजी नहीं था, एवरेज। एवरेज था। प्रैक्टिस से लेकिन प्रैक्टिस नहीं, से इजी हो जाएगा। जितना जितना आपने पहले, मान लीजिए इस क्लास से पहले अगर आपको आता तो कुछ भी कर पाती, सवाल हिलता हिलता, कर लेते, नहीं कर पाते। कर पाते। अच्छा, यानी कि उस लिहाज से तो बहुत इजी हो गया ना फिर। हाँ चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन N2 प्लस, बहुत टाइम लग रहा है आपको, आके विल गिव यू 2NH3। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यही है, ये सुनो। आकिब एंड अफाफ टेल मी। आकिब, आवाज नहीं आ रही है आपको? नो प्लीज सी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? Yes, yes, sir. नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को देखेंगे हम लोग, आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया को देखेंगे, हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे। केस 1 ही चल रहा है, इन व्हिच यू हैव टू इन्वॉल्व ओनली वन ऑफ द रिएक्टर्स। सो आई विल राइट द मोल here because they have given moles, so number of moles of N2 is equal, no, number of moles of ammonia दिया हुआ है, my bad, number of moles of ammonia is given as NH3 will be equal to 8.2. Now we'll apply the mole to coefficient ratio। N2 के लिए क्या हो जाएगा, number of moles of N2 upon what is the stoichiometric ratio, sorry, what is the stoichiometric coefficient, 1, will be equal to number of moles of NH3 divided by 2। So I can write number of moles of N2 will be equal to number of moles of NH3 कितना है, 8.2 दिया हुआ है, 8.2 moles divided by 2, this will be equal to how much, 4.1 moles। Got this SNOP Sunny? Yes, sir. समझ में आया? यस चलिए सर। ठीक है। क्यों इतना टाइम क्यों लगा आपको आके? Sir, something very good thing happened with that's why. Some very good thing happened। Yeah, I was What lucky, good thing that's है? why. You got इतना टाइम लग गया, क्यों, क्या लकी हो गया? Ink finished, not getting Hmm? another pen. Ink was finished, I was not getting another pen. Oh, okay, limiting reagent। Now write the definition। The reactant that is completely consumed
in a chemical reaction. In a chemical reaction is known as limiting reagent. I will call this limiting reagent as LR. Okay, now please write. LR is determined when amount of 2 or more reactant is given. अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, केस 2, केस 1 अब हो जाएगा केस 2, when amount of 2 or more reactants are given. ठीक है, तो क्या करेंगे, you will determine the limiting reagent. कैसे determine करेंगे limiting reagent, प्लीज? Calculate the mole to coefficient ratio of all the reactants. Of all the reactants. Calculate the mole to coefficient ratio of all the reactants. The reactant with least value of mole to coefficient ratio. MCR लिख दें, mole to coefficient ratio को बताइए. Value of MCR will be limiting reagent. तो same चीज करना है ना? You have to do the same thing, and then what you have to do? You just need to compare. अब क्या कर देना उसके बाद? उसके बाद सिर्फ compare कर देना. After that, you will write a very important point. So दो स्टार लगा लीजिए. Amount of product. Amount of product is determined by limiting reagent. Done everyone? Yes or no, please tell me. Last line left, sir. Last line ना, जल्दी लिखिए आराम से. Done. Okay. आके आपका हो गया? Yes, sir. ठीक है. चलिए एक सवाल लिखते हैं जिसमें आपको ना आंसर ऐसे बिल्कुल बहुत जोर जोर से ऐसे आपको आंसर आता है, बहुत जोर जोर से आंसर आता है. क्या सवाल है? देखिए. 16 gram of CH4 reacts with 16 gram of O2. Calculate the amount of CO2 and H2O formed. तो अफाफ बहुत जोर से मन करता है ना कि 16 ग्राम एंड 16 ग्राम. ये अफाफ 16 gram of CH4 reacts with 16 gram of O2 to give 16 grams of CO2 and 16 grams of H2O. मन करता है आपको? अफाफ, फिल्मी मन करता है. मन करता है, नहीं करता? किस चीज का पूछना? आपको आवाज नहीं आ रही अफाफ सही से? आके आपको मन करता है ऐसे 16 ग्राम ऑफ No, CH4 sir. प्लस 6
नहीं मन करता आपका? क्या मन करता है आपका? करता अफाफ को मन करता है ना अनदर अफाफ? आंसर क्या अनदर आंसर? कुछ भी हो सकता है सर, अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेट नहीं किया, अफाफ को लेकर मन करता है, लेकिन अफाफ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? केस 2, व्हेन दी अमाउंट ऑफ, अभी तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 CO2 plus प्लस 2H2O। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, we have been given the amount of CH4 also and O2 also। तो सबसे पहले what we have to do, we have to determine the, इसको पढ़ते जाइए, अब यहाँ पे पढ़ने, when amount of 2 or more reactant is given, what do we do, tell me? क्या करते हैं अफाफ एंड आकिब, क्या करते हैं जल्दी बताएं अफाफ आकिब, what do we do when the amount of 2 or more reactant is given? We determine limiting reagent। अफाफ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? अफाफ, दिख रहा है वैसे सोच रहा हूँ। हाँ सोच, में सोचना नहीं है, वही तो गलती कर रहे हैं आप, सोच रहे, सोचना है ही नहीं, दिमाग लगाने वाला सवाल ही नहीं है, सोचना नहीं है, ठीक है? दिस इज क्या लिखा हुआ केमिस्ट्री, बताइए? anything can happen। हाँ CH4 plus 2 नहीं 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 नहीं, आप ये, हम ये पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़िए। अब केस 2 हो गया ना, व्हेन अमाउंट ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट आर गिवन, सो व्हाट डू वी डू, डिटरमाइन limiting the reagent, limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट। और कैसे डिटरमाइन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, उसके आगे वाले लाइन में लिखा होगा, पढ़िए पढ़िए। एक मिनट, मैं स्क्रॉल अप पूरा, मैंने पूरा नहीं लिखा। आपने लिखा नहीं था, और ये गलत बात है ना अफाफ, जल्दी लिखिए प्लीज, आप लोग लिखिए, 2 मिनट में हमारे, ठीक है ना? आई विल लेट यू नो व्हेन आई एम बैक, ठीक है? बहुत प्यास लग रहा है, पानी पी के आते हैं। लिख लिया। ओके, अरे हम तो बोले ना हम पानी पी के आ रहे हैं, आई विल लेट यू नो वंस आई एम बैक। अभी आया हम जी। अफाफ, व्हाट वर यू सेइंग? लिख लिया। लिख लिया आप, चलिए। आप लिखती हैं ना कि ऐसे फाकी मारते रहती हैं? नहीं मैं लिखती हूँ, लिख लिया। अच्छा, तो बताइए, हाउ विल वी डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ ऑफ? We'll calculate the mole to the coefficient ratio तो इसके लिए क्या हो of जाएगा all the CH4 के लिए? reactants। ऑल द रिएक्टेंट्स। सो फॉर CH4 MCR और CH4 क्या हो जाएगा बताइए? कैसे लिखेंगे? गिवन मास, मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? मास वाला, राइट? टेल मी व्हाट इज द मास फॉर्मूला? मास फॉर्मूला। नहीं, हाँ ऐसे, ये लिखा आपने? हाँ ये लिखा है, हाँ तो मास बताइए इस तरह से, मास डिवाइड बाई MCH4 इनटू into 1। कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड बाई 16 16 इनटू divided by 1, 16 which is 1 आ 1। गया। और MCR फॉर O2 कितना आ जाएगा? मास ऑफ O2 डिवाइड बाई O2 by मोलर मास ऑफ mass इनटू, O2 into 1। नहीं 1 नहीं सॉरी 16। क्या आएगा अब आप? इनटू इनटू into क्या 32। आएगा? अरे नहीं,
मोलर मास है वो तो मोलर। हाँ अपाप, ये वन कहाँ से आया? कहाँ से आया ये वन? CH4 में वन भूल गए, है ना? भूल गई अफाफ? जी टेल मी। वन। अरे नहीं यार, अफाफ देखो, आप नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगी पढ़ाई। देखिए आप पुराने सवाल देखिए क्या लिखा वहां पे हमने, वैसे तो बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिए आप। कहाँ से आया वन? यहाँ पे क्या था? रिएक्शन देखिए और बताइए, ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये डी क्या है? बताइए। भूल गए आप, भूल गए, एकदम भूल गए। हम्म। अच्छा टॉपिक पढ़िए तो याद आ जाएगा शायद, टॉपिक पढ़िए। मोल्स है, है? कोएफिशिएंट विच। हाँ तो क्या है? ए बी सी क्या है, ए बी सी डी? ए मोल है। अरे यार ए से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को? अरे अभी तो बताया था भाई, क्या है 1 2 3? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट नीचे। क्यों आप हम मुझको पागल कर देंगी आप? पागल करना चाहती हैं हमें? चाहती हैं पागल हो जाए? अफाफ बताइए अब क्या होगा? m इंटू एम ऑफ O2 इंटू 2 दिखा? हाँ। ठीक है, इज इक्वल टू, बताइए कितना जगह गिवन मास ऑफ O2? 16 16 बाई डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ O2 अफाफ। नहीं यार जल्दी। 32 into 2 34 16 by 34 34? नहीं 16 by 64 वो उतना नहीं करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना, 16 2 32 इज इक्वल टू 1/4 कर लेंगे, वो क्या ओके है ना? बताइए कौन छोटा है, 1 छोटा है 1/4 छोटा है? विच इज स्मॉलर? 1/4 तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा? O2 लिमिटिंग रिएजेंट विल बी ox O2, है ना? अब you have to calculate the amount of CO2 and H2O. Then what we are going to do, as we can see, amount of product is determined by limiting reagent आपका माइक क्यों ऑफ हो रहा है? आपका माइक क्यों ऑफ हो रहा है बताइए, आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप माइक ऑन करके रखिएगा ना। सुनिए, नहीं एक्चुअली हाँ कोई बात नहीं, आप हैं ठीक है, बाहर है, इंडिया में बात कर रहे लोग, तो क्या हो गया? क्या ही बात सर होगा, आम बहुत अच्छा रहा होगा अभी तो। हाँ बताइए। ये 1/4 को 0.25 नहीं कर सकते कन्वर्ट? क्यों करना है लेकिन? पूछ रहा हूँ, करना कर सकते हैं? नहीं लेकिन क्यों करना है, रीजन होना चाहिए, ठीक है? फ्रैक्शन से अगर आप डेसिमल कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। मेरे क्लास में अगर आपको, अगर एंड ऑल्सो अगर ये बीच का आंसर, मतलब इस ये बीच में आ रहा है तो एट द एंड आपको करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी चीजों को लिखना रहता है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शंस नहीं होता है। तो जब आप आंसर आ जाएगा तो आप आंसर मान लीजिए आ गया आपके पास 2/10, तो आप इसको लिखिएगा 2 × 10⁻⁻1, या फिर क्या लिख दीजिएगा इसको, 0.2 लिख दीजिएगा इसको, ठीक है? इस तरह का आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। बट इन जनरल अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग कभी भी फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे, until and unless there is a very good reason to do that। इसका हम आपको वजह बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बताइए आप 0.33 इंटू 3 क्या वैल्यू हो जाएगा इसका? या फिर ये छोड़िए आप, 0.99। 0.99 आपको लग रहा है वैल्यू हो जाएगी, है ना? और इंटू 6 करेंगे तो लंबा हो जाएगा। देखिए आप, सुनिए 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 सुनिए, हाँ ठीक ठीक, सुनिए आप यहाँ पे प्लीज देखिए, 1/3 की वैल्यू निकाली, कितना होता है? व्हाट इज 1/3?
0.33333. 0.33. 0.3333. Yeah. Yes. Okay. Now please listen. इसको लिख सकते हैं 0.333. That means if I want to do 0.33 into 6, ठीक है, तो ये जब कैलकुलेशन आएगा कब, आखिरी के आंसर में तो कैलकुलेशन नहीं आएगा, बीच में कहीं आएगा. तो रादर देन राइटिंग 0.33, आप क्या लिखिएगा 1/3 into 6. कितनी आसानी से आंसर आ गया 2. सही है Yes, आकिब? sir. ठीक है. तो Yes, sir. हमेशा whenever we are in the middle of a problem, we are not going to convert any fractions to decimal until unless बहुत obvious हो जाए कि कन्वर्ट करना ही है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से आ जाए, लेट अस सपोज 1/10⁴, तो इसको 10⁻⁻⁴ लिख देंगे, फिर ऊपर ले जाके, है ना, इस तरह से कर लेंगे. Yes, sir. या फिर -4 आ जाए तो ऊपर ले जाएंगे, इस तरह का फ्रैक्शन कुछ बहुत ऑब्वियस हो जाएगा. तो अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देना. ठीक है. लिमिटिंग रीजन विल बी O2. आगे देखिए. Now, what we are going to do, we will determine the product CO2 and H2 according to O2. So for CO2, what we will do, W of O2 divided by M of O2 into 2 will be equal to W of CO2 divided by molar mass of CO2 है क्या फाफ, नहीं कुछ नहीं. क्या सिम्बायोसिस क्या बोल रही हैं आप, खैरियत से हैं आप? जी इधर नहीं सर, देखिए. मैं MCO2 into 1 बोल रही थी. अच्छा, this is equal to how much? 1/4. 1/4. 1/4 into give, हाँ? sorry, लैपटॉप कहाँ है? ये क्लास चल रही है. मालूम आपको करो. 1/4 is equal to mass of CO2, we don't know that, divided by molar mass of CO2, that is equal to how much? 44 into 1. ठीक है. So this will be equal to how much? Mass of CO2 will be equal to 44 divided by 4, which will be equal to 11 grams. Is this clear? Similarly, Yes, sir. calculate the mass of H2O. Let me know once you're done, guys. Sorry, sir. और H2O निकाल लिया आपने? H2O कितना है? Doing, sir. हाँ कीजिए, आराम से कीजिए. तो अब आपको समझ में आया? जी सर, आगे. H2O का फाइंड करिए, H2O का डिटरमाइन कीजिए.
यस, H2O का नहीं निकला, जल्दी निकालिए भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्या हो गया? फिनिश सर। अब तो भेजिए, बताइएगा नहीं आंसर, क्या बैठे हुए हैं आप, चैट में भेजिए आंसर। अफाफ आपका हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ मैम। क्यों? ये आपने सुना था या फिर आपने नहीं सुना था, जो फॉर CO2 कर रहे थे हम? CO2 को कर रहे, सो आई देख सुना था मैम। सुना था आपने? तो लिमिट LR विल बी O2 है ना? तो इसके लिए भी क्या करेंगे, क्या पहले लिखा आपने ये, मास ऑफ O2 डिवाइड बाई m of O2 into 2 will be equal to mass of H2O divided by molar mass of H2O into how much? Into 2। ठीक है। What is the mass of ये पूरा वैल्यू कितना आया था पापा, आपको जल्दी बताइए। What was this value? MCR of 1/4। 1/4 into mass of H2O, I don't know. Molar mass of H2O will be how much? Of molar mass of H2O? 18। प्लग इन कर दीजिए 18 into 2। ठीक है, राइट, ये सुनो। यस। अब बताइए कितना आ जाएगा आंसर? 18 into 2 divided by 4। आपका गलत आंसर आया आखिर? यस सर। क्यों, कैसे गलत हो गया? सर आई टुक रॉन्ग वैल्यू। फॉर व्हाट? रॉन्ग वैल्यू ऑफ व्हाट? एवरीथिंग। 9। ठीक है, अब आप करेक्ट एवरीथिंग क्या? चलिए राइट दिस डाउन क्विकली। डन, ये सुनो प्लीज मी। यस सर। यस। राइट नेक्स्ट। Right, if 20 gram of should do something else. All of you remember double displacement reaction? यस सर। ठीक। Now I just want to revise you. I just want to, this is just for revision. Can you tell me what is the formula for molarity? Molarity is equal to how much? अफाफ आपको याद है, हाँ या ना बताइए, क्या वो फॉर्मूला नहीं बता। अफाफ, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? यस। आके आपको भी पता है? यस सर। ठीक है, अफाफ बताइए पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हाँ? इन लीटर्स। ठीक। नाउ फ्रॉम हियर कैन आई गेट नंबर ऑफ मोल्स एज m into v, है ना? नंबर ऑफ, यस ठीक है, सर। ये ध्यान रखिएगा। चलिए राइट अ क्वेश्चन नाउ। 250 ml of 250 ml of 0.5 molar sodium sulfate Na2SO4 solution are added to an aqueous solution, are added to an
aqueous solution containing 10 gram of BaCl2, 10 gram of BaCl2, resulting in the formation of BaSO4. How many moles and how many grams of BaSO4 will be formed? For this, first of all, 250 ml of 0.5 mole sodium sulfate. So they have giving me some information about Na2SO4. Na2SO4 के बारे में उन लोगों ने क्या-क्या बताया? They have given me the volume. Volume is equal to 250 ml. They have also given me the molarity, that is equal to 0.5. ठीक है? They have also given me the molarity, that is 0.5. Now what they have given? They have also given me something about BaCl2. BaCl2 का उन्होंने क्या दिया है? 10 gram. They have given me mass, that is equal to 10 grams of BaCl2, resulting in the formation of BaSO4. You have to calculate BaSO4. That means they are also given me a reaction that Na2SO4 plus BaCl2 gives you what? Tell me. NaCl, sodium plus chloride, NaCl plus Ba plus SO4, BaSO4. Now balance this reaction. To NaCl? Balance 2 NaCl. Now it is balanced, right? Yes, sir. ठीक है. अब देखिए, डरना नहीं है ना, हमने डरना नहीं, हमने घबराना नहीं. सुन, आपको बस दो केस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सवाल आ जाए, हाउ मेनी मोल्स इसका, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी सवाल आ जाए, यू हैव टू केसेस, केस 1 एंड केस 2. आपने और कुछ नहीं सोचना है. whenever you get any questions regarding stoichiometric calculations, what you will think of? Tell me guys. Afaf and Akib, you will think of Question 2. क्या क्या आकिब, क्या कहा आपने? The first part and second part. अरे नहीं यार, केस 1 केस 2 बोल रहे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट. एटलीस्ट रिपीट व्हाट आई एम सेइंग प्रॉपर्ली ना. केस 1 एंड Case 2. case 1 and what is the case 1? What is the case 1? Case 1, yeah, when the amount of only one reactant is given. What is the case 2 of Afaf? लिखा है आपने Afaf? Afaf आपने लिखा है? जी सर लिखा है. बताइए क्या है? What is the case 2 of Afaf? Case 2 in which one reactant is given, limiting, we should determine the limiting reagent. नहीं. केस 2 पूरा पढ़िए ना. Read the complete case 2. Case 2 उसका पढ़िए क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा आपने? We should calculate the mole of the coefficient ratio. नहीं Afaf, please wait a second. केस 2 के बाद आपने तुरंत क्या लिखा है? केस 2 लिखा, उसके बाद उसके बाद I wrote one reactant must be used. I mean, ये नहीं लिखा when amount of 2 or more reactant are given. reactant are given, we should determine the limiting. वही बोला मैंने. अरे भाई नहीं when हम बोले केस 2 के बाद क्या लिखा है? आप बोल रहे डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट.
केस टू के बाद व्हेन लिखा है ना, अमाउंट लिखा है ऑफ टू और मोर An amount रिएक्टेंट्स। of two or more reactants are given. ठीक है, हम देखिए हम बहुत आसान सवाल से पूछते हैं, हम इधर उधर के सवाल ट्रिकी क्वेश्चन हम नहीं करते। ठीक है, वेरी सिंपली आई एम आस्किंग व्हाट इज द केस वन। नाउ रिपीट माय, फिर से बोलिए व्हाट इज द केस वन। When amount of one reactant is given. एंड व्हाट इज द केस टू। When amount of two or more reactants are given. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केस वन और केस टू। Case 2. ठीक है, now in case 2 what is the next step that we have to do? We have identified, आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या रहेगा काम, आइडेंटिफाई करना whether it is case 1 और case 2. Case Then 2. the process will belong to, अगर case 1 है तो case 1 का process वहीं पे लिखा हुआ है, if it is case 2 then case 2 का process सारा लिखा हुआ है. Tell me, this is case 2, so what we have to determine first? Case 2. हाँ नहीं, case 2 तो हो गया, अब उसके बाद once we have identified that this is a question which belongs to case 2, what's the next thing We that we should have to do? determine the limiting reagent. We have to determine the limiting reagent. How will we determine the limiting reagent? By calculating the mole of coefficient of ratio of all the reactants. ठीक है, can I get the number of moles of Na2SO4? यहाँ से m into v करके मिल जाएगा number of moles. yes or no, tell me. Number of moles is equal to how much? Molarity into volume, अभी बताया था हमने. हाँ. So number of moles कितना हो जाएगा? 0.5 multiplied by 250 नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 0.25 because in liters. 0.2. कितना आ जाएगा आंसर बताइए? 0.125. This is only the number of moles, तो coefficient ratio अभी नहीं निकाला हमने. ठीक है, BaCl2 के बारे में बताइए. What will be the, how will we determine? मास दिया हुआ आपको, you will determine the number of moles from given mass by molar mass. What is the molar mass of BaCl2? Any idea? Any idea? क्या molar mass है? No idea. No, sir. लिख लीजिए. This given mass is 10, molar mass is 208. क्या इस फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे. इवन फॉर दैट मैटर 125 को भी आप लोग क्या लिख लीजिए? 0.125 को 125 डिवाइड बाई 1000 कर लीजिए. ठीक है, इट विल मेक थिंग्स इजी. ठीक है, डेसिमल में मत रखिए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, MCR ऑफ Na2SO4 क्या हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ Na2SO4, राइट? Yes, sir. Number of moles of Na2SO4 is 125 divided by 1000. ठीक है, कोएफिशिएंट तो 1 है, तो कोई इसमें ये नहीं है. MCR of BaCl2 कितना जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 डिवाइड बाय Coefficient. कोएफिशिएंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 we have got 10 upon 208 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा because the coefficient is 1. Now tell me which is greater, कौन बड़ा है? Any idea कौन बड़ा है? नहीं बड़ा है, बताइए. Approximate, अफाफ, आकिब, which is bigger? Akib, tell me which is bigger? 0.125. अच्छा, अफाफ 0.125. how? कैसे बता रहे हैं आप लोग, बताइए जरा. आकिब इसे बताइए पहले. डिवाइड आकिब. करके 10/208 is 0.04 and 125 by 1000 0.12. अच्छा ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं. ऐसे नहीं, मतलब डिवाइड करने से अच्छा डिवाइड ज्यादा आसान, मल्टीप्लाई. If I multiply Depends on both of, question, sir. जनरली मल्टीप्लाई ज्यादा आसान ना, क्योंकि डिवाइड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है. सही है आकिब? Yes, sir. डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है ना, Yes, sir. है ना? मल्टीप्लाई करने के लिए आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, राइट? सो दोनों को 5 से कीजिएगा. दिस इज ऑलमोस्ट 50 एंड द डिनोमिनेटर इज ऑलमोस्ट 1000. सही है?
Yes, sir. अब कंपेयर कर सकते हैं ना आसानी से, वी कैन कंपेयर इट वेरी इजीली। कौन बड़ा हो गया? 125 बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया? दिस इज स्मॉलर, MCR of BaCl2 is smaller, that is why which will be limiting reagent, tell me, is it smaller? Yes, sir. Yes, So sir. LR will be, limiting reagent will be BaCl2. Now we will calculate the amount of BaSO4. So how will we write? We will write MCR of BaCl2, it will be equal to MCR of BaSO4 है ना, और MCR of BaCl2 कितना आया? 10/208। MCR of BaCl4 क्या हो जाएगा? क्या निकालना? मोल्स और ये दोनों निकालना है क्या? चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। कुछ कोएफिशिएंट है इसका? टेल मी गाइस। ओनली कोएफिशिएंट इज 1 ना, सो यू कैन से नंबर ऑफ Yes, मोल्स sir. ऑफ BaSO4 will be equal to 10/208, correct? Yes. Now mass Yes, sir. of BaSO4 will be equal to 10/208 multiplied by, what is the mass of BaSO4? Right here, 233. Tell me any approximate answer, कितना आएगा फिर बताइए। 10 से ज्यादा, 10 से कम, ये बताइए आप। Will be greater than 10, less than 10? Answer will be greater than 10, less than 10. Greater than 10, less than 10. Oh हो, Greater than 10. वेरी गुड। कितना ग्रेटर? बहुत ज्यादा ग्रेटर या थोड़ा ग्रेटर? It will be 11.2. 11.20. देखिए कैलकुलेट करना तो सब कर लेते हैं, बिना कैलकुलेट करके बताइए तो कोई बात है ना। कैलकुलेट तो सारे कर लेंगे। कैलकुलेटर यूज कर लिया आप लोगों ने? कैलकुलेटर यूज कर लिया आप लोगों ने? अच्छा मैंने shame guys। आपने कैलकुलेटर यूज नहीं किया? अपाफ मैंने यूज किया कैलकुलेटर। आपने यूज किया कैलकुलेटर, और किसने यूज किया? आकिब ने भी यूज किया। इतना जल्दी कहाँ से आंसर आ जाएगा? 11.20 है ना। Finger, देखिए sir. फिंगर, Yes, sir. फिंगर्स, हाउ, टेल मी। Fingers will use on phone. Then answer will come. एग्जाम में लेकिन तो नहीं मिलेगा ना फिंगर्स आपके। आपके तो हाथ काट दिए जाएंगे, बिकॉज आप तो बहुत एडवांस है ना। ताजमहल बनाया आपने तो जैसे शाहजहां ने काटा था, वैसे भी आपका जो हाथ है, जो फिंगर्स है ना, जो बहुत ज्यादा तेज है, जो आंसर निकाल दे रहा है, वो तो नहीं रहेगा आपके पास, राइट? है ना। फिर आप क्या हो जाइएगा? तब तक के लिए दूल्हे हो जाइएगा एग्जाम में। अभी तो स्मार्ट बने फिर रहा है ना। फिंगर सर एग्जाम में आ जाएगा, फिंगर में गिनने लायक मार्क्स। तब भी क्या बोलिएगा? कहाँ मार्क्स? फिंगर में गिन लिया सर मार्क्स। अप्रोक्सीमेट करना सीखिए 11th-12th क्लास में, समझे? अप्रोक्सीमेट करना सीखिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रोक्सीमेट वेदर इट बी मोर देन 10 या लेस देन 10। कैसे बताएंगे? बिकॉज 208, 233 वेरी सिमिलर वैल्यूज, बट न्यूमरेटर इज ग्रेटर। न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है। इफ इट वाज 208 तो दोनों कैंसिल होकर 10 हो जाता, लेकिन क्योंकि ये बड़ा है, दैट इज व्हाई इट विल बी अ बिट मोर देन, इट विल बी अ बिट मोर देन 10। अब उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेट करना है। नाउ यू हैव टू अगेन अप्रोक्सीमेट कितना बड़ा हो, हाउ लार्ज इट इज गोइंग टू बी। ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कितना डिफरेंस है दोनों में। क्या? दिस इज 208 एंड दिस इज 233, ऑलमोस्ट द डिफरेंस इज हाउ मच? कितना का डिफरेंस आ रहा है? 33 से 2 अगर 3 5 हो गया, और दोनों के बीच में हो जाएंगे 20, ऑलमोस्ट 25 का डिफरेंस है, राइट? Yes, sir. ठीक है, 25 का डिफरेंस है।